الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثناء میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، نیا اسلامی سال سن 1445 ہجری آج شروع ہو چکا ہے۔ آج یکم محرم الحرام اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی عظیم آج کا دن ہے۔ جس طرح اس ماہ مقدس کو بڑی ہی شانیں اور بڑی ہی نسبتیں اور عظمتیں حاصل ہیں، بالکل اسی طرح آج یکم محرم الحرام کو ایک بہت ہی عظیم نسبت حاصل ہے۔ آج کا دن اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار، ایک عظیم صحابی رسول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جبل استقامت، مراد قلب رسول، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کی مثل قیامت تک دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، ان کی مثال صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی بار پیدا ہوتی ہیں، دوبارہ پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے دوبارہ دوسرا کوئی عمر پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ شان اور فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے رب سے مانگ کر لیا۔ اور تاریخ کی کتب کے اندر ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو مانگا تو خانہ کعبہ کی عمارت کے ساتھ چپٹ کر اپنے رب سے دعا کی کہ مولا مجھے عمر عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کو، اس مراد کو قبول فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت تھے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تلوار لے کر خانہ کعبہ کی صحن کے اندر کھڑے ہو گئے اور تمام حضور علیہ السلام کے غلاموں کو آپ نے فرمایا، کریم نبی علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ صحن حرم کے اندر نماز ادا کیجئے، میں عمر یہاں کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون آ کر اس کے اندر خلل پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے مکے والو، اگر ہے کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنے والا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے والا، تو وہ آئے اور آج عمر کو آ کر روک لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت، مقام اور عروج عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زیادہ شانیں ہیں، بہت ہی زیادہ فضائل اور مناقب ہیں۔ میں اختصار سے چند وہ شانیں جو پیارے آقا علیہ السلام کی زبان اطہر سے آپ کو عطا ہوئیں، مختصراً ان کو بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ عمر ہے کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ عمر ہے کہ یہ جس راہ سے گزر جاتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور عمر کا جلال اتنا ہے کہ شیطان آپ کے سائے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر کی شان اتنی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 950 سال تک اگر عمر کی شان کو بیان کریں تو عمر کی شان کو بیان نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا ہی شانیں تھیں۔ اور یہ اس وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی مبارک زبان سے آپ کو عطا ہو رہی ہیں۔
और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा इकराम कभी बैठकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यही शान बयान फरमाते तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाते और कहने लगे, है मेरे नबी के गुलामों, मेरी क्या शान और मेरी क्या औकात, मैं तो मक्के के अंदर ऊँट चराया करता था, मक्के के अंदर मैं ऊँट चराता था, और जब ऊँट कभी मुझसे संभाले ना जाते तो मेरा बाप मेरे साथ सख्ती किया करता था। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और आपने मुझे वो अजमतें और शानें अता कर दी, वरना मेरी क्या औकात, उमर तो मक्के के अंदर ऊँट चराया करता था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीमुल मर्तबत सहाबी रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आखिरी सांस तक पर उस पर कारबंद रहे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा इकराम फरमाया करते थे कि उमर वो हैं कि अगर इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मलामत की जाती है उमर को, तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं और पसे पुश्त डाल देते हैं और इस्लाम के लिए हर मलामत को अपने कबूल कर लेते हैं और सह लेते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम सहाबी की शाने मैं या मेरी जैसी और ज़ुबानें क्या बयान कर सकती हैं कि जब सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस गुलाम की शानों को बयान फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस गुलाम की शान और अज़मत, एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपके बारे में, और इस वाक़े के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान और वो मोहब्बत जो अहले बैत से आपकी थी, वो भी सामने झलक कर सामने आ जाती है कि एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आप तशरीफ़ फरमा थे, किसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, तो उतने में आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए। लेकिन जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे तो आपको रोक दिया गया, फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अभी किसी काम से मसरूफ़ है, मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, आप मुलाकात नहीं कर सकते। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर खड़े हो गए, इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान शहज़ादा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर सैयदना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए, तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हैं। पूछा कि अमीरुल मोमिनीन किस तरफ हैं, किधर हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अभी किसी मीटिंग के अंदर मसरूफ़ हैं, तो मैं भी उन्हीं से मुलाकात के लिए आया था, और लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि ऐ शहज़ादे, अगर आपने अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है तो आप जा सकते हैं, आपको लिए रुकावट नहीं है। लेकिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई मसला नहीं है, मेरा कोई इतना ज़रूरी और ख़ास काम भी नहीं था, अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ़ हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ, नमाज ज़ोहर का वक्त करीब है, मैं नमाज ज़ोहर के वक्त आपसे मुलाकात कर लूँगा। ये कहकर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मीटिंग से फारिग होकर बाहर तशरीफ़ लाते हैं, तो देखा कि आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वहाँ खड़े हैं। पूछा कि क्या कोई मिलने के लिए तो नहीं आया था? तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अब्बा जान, और तो कोई नहीं आया, लेकिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा। आपने फरमाया कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए थे, लेकिन वो वापस चले गए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ बेटे, तूने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, तू उनको अंदर आने देता, तूने उन्हें वापस क्यों किया? तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, या अमीरुल मोमिनीन के मैंने उनको कहा था कि आप जाएं मुलाकात कर लें, लेकिन वो फरमा रहे थे कि मेरा कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, अमीरुल मोमिनीन मसरूफ़ हैं, तो मैं नमाज ज़ोहर के वक्त मुलाकात कर लूँगा। अहबाब ज़िवकार, अब देखिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत क्या है कि आपने ये नहीं किया कि अब
दोबारा मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते कि चले नमाज ज़ोहर के वक्त वो आएंगे तो मुलाकात कर लेंगे, नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन उसी हालत में दौड़े और दौड़ते हुए शहजादे के दर पर जाकर बैठ गए। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। दरवाजा खटखटाया, आप बाहर तशरीफ लाए तो हजरत उमर हाथ बांध कर खड़े हो गए। फरमाने लगे, शहजादे आप तशरीफ लाए थे तो मुलाकात क्यों ना की? तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन मेरा कोई इतना ज़रूरी काम नहीं था, मैंने सोचा आप मसरूफ़ हैं तो मैं वापस आ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शहजादे आपको अंदर आना था, आपने मुलाकात करनी थी। तो वो फरमाने लगे, मैंने सोचा कि आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ फरमा हैं, अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे बाहर खड़े हैं, यही सोचकर मैं भी अंदर ना गया तो मैं वापस आ गया। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने अपना अमामा सर से उतार कर कहा, ऐ शहजादे क्या आप मेरे बेटे को अपने साथ मुशाबहत दे रहे हैं? क्या मेरे बेटे की औकात इतनी है? क्या मेरे बेटे की शान इतनी है कि वो आपसे मुकाबला कर सके? क्या उसके नाने का नाम मुस्तफ़ा है? क्या उसकी माँ फातिमा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजातुल कुबरा है? ऐ मेरे बेशहजादे, मैं वो उमर हूं कि मक्के के अंदर ऊंट चराया करता था, आपके दर की नौकरी मिली है, आपके नाने ने वो शान और फजाइल मुझे अता किए कि आज मैं अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया, वरना आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं। उमर मक्के के अंदर ऊंट चराया करता था, बस मेरी वही औकात है और मैं उसी को याद रखता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, देखिए किस कदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और अकीदत है अहले बैत अतहार से कि शहजादा रसूल आपसे मुलाकात के लिए आए, लेकिन मुलाकात ना कर सकने की वजह से मामूली सी बात थी, आप वापस चले गए। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन ने इसको भी बेअदबी और गुस्ताखी जानते हुए आपके दर पर चले गए और वहां जाकर माजरत खा हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही शान और बहुत ही फजाइल और बहुत ही अकीदतों और मोहब्बतों वाली शख्सियत थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जिंदगी आखिरी सांस तक इस्लाम का पहरा दिया। जब मक्के के अंदर आपने इस्लाम कबूल किया और मदीनातुल रसूल के अंदर जब आपकी सांसों की वो डोरी टूटी, उस वक्त तक हजरत उमर इस्लाम के अजीम अलमदार बनकर पहरा देते रहे। आज का दिन यकम मुहर्रमुल हराम आपकी शहादत का दिन है। 27 जुल्हज 23 हिजरी को नमाज फजर के वक्त आप नमाज फजर के लिए अपने काशाना मुबारक से निकले तो एक मजूसी गुलाम अबू लोलो फेरोज ने आप पर छुपके से हमला किया और जहर आलूद खंजर से आप पर वार किए। उसने 12 दफा कई वार आपके जिस्म मुबारक पर किए और खंजर का एक वार आपके ज़ेर नाफ लगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए और उन्हीं ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपने दाई अजल को जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने बजाय इसके कि आप एक शायान शान महल तामीर करते, अपने आराम और सुकून के लिए कोई कालीशान घर तामीर करके जाते, बल्कि कुछ भी नहीं था। अमीरुल मोमिनीन जब दुनिया से तशरीफ़ फरमा हुए तो 80 दिनार का कर्ज छोड़कर आप दुनिया से तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला आपकी तुरबत पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला ने आपको वो शान और फजीलत और इस्लाम की उस अलमबरदारी का अल्लाह ताला ने अजर ये दिया कि क़यामत तक के लिए आप रोज़ा रसूल के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू के अंदर रोज़ा रसूल के अंदर गुंबद हज़रा की छाँव में आराम फरमा रहेंगे। अल्लाह ताला आप पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। मैं इन अशार के साथ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपनी ये अकीदत पेश करके इजाज़त चाहूँगा। किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा है, मर्द जलाल मर्द दलेर भेजना पड़ा, मर्द जलाल मर्द दलेर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पर ऊंचा ही सर
بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت ایک بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔